এই প্রেস কনফারেন্স ডাকার কারণ হচ্ছে যে আমি কোনো ইলিগাল কাজ আমার এলাকাতে होते দেব না। शनिवार को आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस वार्ता कर इसको की जमीन पर अवैध रूप से हो रहे कब्जे को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि इसको की जिन सरकारी क्वार्टर्स और बंगलों पर इसको के कर्मचारी और अधिकारीगण का आवास होना चाहिए था, उस पर कब्जा कर सेल के मुफ्त पानी, बिजली और आवास का फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस, टीएमसी और वाम के यूनियन के लोग। अगर सड़क के किनारे कहीं दुकान लगानी है और उसके लिए जगह चाहिए तो टीएमसी नेता या यूनियन के लोगों को 1-1.5 लाख रुपए दे दे, आपको जगह मिल जाएगी। फिर 10 से 12 हजार रुपए हर महीने किराया दे और सेल की जमीन पर दुकान लगा ले। इस ऑफर का भी अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए खुलासा किया। उन्होंने यह भी बताया कि रहमत नगर में इसको की जमीन बेची जा रही है। न्यू टाउन में सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर के पास लगभग 20 बीघा जमीन, जिसमें से कुछ हिस्सा इसको का भी है, वहां बाउंड्री बना दिया गया है। इस तरह से अवैध दखल आखिर किसकी अनुमति से हो रहा है? अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी इसको के डीआईसी को भी दी है, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इन सब दखल के अलावा इसको की जमीन पर कई स्थानों पर दर्जनों टीएमसी पार्टी कार्यालय बना दिए गए हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा कि यदि राज्य पुलिस और पुलिस आयुक्त तथा जिला प्रशासन ने इन जमीनों और क्वार्टर्स को अतिक्रमण मुक्त कराने में सहयोग नहीं किया तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत की जाएगी। তৃণমূল এত বড় বড় কথা বলে, সততার প্রতীকটা এখন আর লেখেন না লজ্জাতে। তবে ওই বলি না, মা মাটি মানুষ, মার জমি দখল হয়ে গেছে, মার মা বাড়ি পাচ্ছে না, আবাস যোজনার বাড়ি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠাচ্ছেন, সেই বাড়ি মায়েরা পাচ্ছে না, গরিব মায়েরা পাচ্ছে না। তৃণমূলের বড় বড় কর্মী নেতারা তারা বাড়ি পাচ্ছে, যাদের 4তলা 5তলা বাড়ি তারা বাড়ি পাচ্ছে। মাটি দখল করে নিয়েছে টেররিস্ট, গুন্ডা, অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স চলছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে। আর মানুষ তো বড় কাঁদছে। সেই মা মাটি মানুষের সরকারের ইউনিয়ন তারা বিভিন্ন কোয়ার্টার দখল করে রেখেছে এবং কংগ্রেসের ইউনিয়ন রয়েছে আইএনটিইউসি, সে দখল করে রেখেছে প্রায় 1 2 3 4 5 5টা, আমার কাছে যতটা এসছে আর কি, 5টা বাংলো। এআইটিইউসি 1 2 3 4 5 6 7খানা বাংলো। এইচএমএস 1 2 3 4, বিএমএস 3টে আর সিটু 1টা। এইটা হচ্ছে তাদের মানে দখল করা বাংলো, কোয়ার্টার। আমার কেন্দ্র সরকার না, সবার কেন্দ্র সরকার, সেখানে ইলিগাল কাজ তো আরোই হতে দেব না। তাই এই বিষয়টা নিয়ে আমাকে এবার জানাতে হবে মিনিস্ট্রিকে, স্টিল মিনিস্ট্রি, সম্মানীয় আমাদের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াজি, আমাকে জানাতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির অফিসেও, যে আরো কত রকমের দুর্নীতি ঢুকবে। শুধু জমি বিক্রি করা তো নয়। আজকে যে এই জমির কথা আমি বললাম, ইসকোর জমি, এই পয়েন্টটা আমি মিস করে গেছিলাম। এই প্লটিং হচ্ছে কোথা থেকে? এই দখল পাঁচিল দিয়ে দিচ্ছে, এগুলো হচ্ছে কোথা থেকে? বর্ধমানের বিএলআরওর অফিসে গিয়ে ডকুমেন্ট ফোর্জ হয়ে যাচ্ছে। 30,000 টাকা, মাত্র 30-40 হাজার টাকা আপনি দেবেন। আপনি আপনার জমি 1950 সালে আপনার বাবা কিনেছেন, আপনি বর্ধমানে যাবেন, 40,000 টাকা ঘুষ দেবেন, ওরা দেখিয়ে দেবে যে 1940 সালে ওই জমিটা অন্য কাউকে বিক্রি করা হয়েছিল, ওটা আপনার জমি নয়, ওটা কোনো আরেকজন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বর্ধমানের বিএলআর অফিসে বিরাট এক দুর্নীতি হচ্ছে। এবং মমতা ব্যানার্জি যে বিল আনার কথা বলছেন, সেই বিলেও সেই একই রকম দুর্নীতি করারও আরেকটা প্রসিডিওর। এই সরকার হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের সরকার, এই সরকার হচ্ছে চোরেদের সরকার, এটা মানুষ বুঝে গেছে। তাই আজ শত্রুঘ্ন সিনহাকে ঘেরাও করা হয়েছে। শত্রুঘ্ন সিনহাজি, আপনি অনেক বড় বড় কথা বলতেন, মানুষের ওপরে আপনি যেতে পারবেন না। আজকে দিদির দূত আর দিদির ভূত পিঠে কুলো বেঁধে যান। কাল তো দেখতে পেলেন অর্জুন সিং
শতাব্দী রায়, সায়ন্তিকা, দেবাংশু, যেখানে যে যাচ্ছে, জ্যোতির্প্রিয় মল্লিক, মানুষ ঘেরাও করছে, বিজেপি নয়, সাধারণ মানুষ। वहीं अग्निमित्रा पर पलटवार करते हुए अशोक रुद्र ने कहा कि जिन जमीनों पर पार्टी कार्यालय बने हुए हैं वह लगभग 30 से 35 साल पुराने हैं और इसके लिए मौखिक तौर पर इसको के अधिकारियों से ही परमिशन दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इसको के क्वार्टर्स पर बीजेपी के समर्थकों ने कब्जा कर रखा है। উনি কি বলেন কোনো ওনার ঠিক নেই। উনি জবে থেকে নতুন রাজনীতিতে এসেছেন, তো খালি অভিযোগ করেন, গঠনমূলক কাজ নেই। আর যে অফিসগুলো ওনারা বলেছেন, কোনো অফিস 30 বছর, 35 বছর, 10 বছর করে আছে, এবং এগুলো ইসকো আমাদেরকে সব মৌখিকভাবে পারমিশনও দিয়েছিল। এতদিন ধরে আছে, যদি অবৈধভাবে হতো ইসকো কেন অ্যাকশান নেয়নি? আর দ্বিতীয় কথা, আমরা লিখিতভাবে অনেকবার ইসকোকে বলেছি যে আপনারা যেমন অগ্নিমিত্রা পাল দেবীকে একটা বিরাট বাংলো দিয়েছেন, বাংলোটাকে যেমন সাজিয়ে দিচ্ছেন ইসকোর টাকা খরচ করে, আমাদের সেই ধরনের চাই না। আমাদের মানুষকে পরিষেবার জন্য একটা ছোট কোয়ার্টার বা কিছু দিন, যেখান থেকে আমরা মানুষকে পরিষেবা দিতে পারবো। তো ইসকো সেটা দেয়নি। আর মাননীয় বিধায়িকা বলেছেন ঠিক আছে, কিন্তু উনি আগে খবর নিন যে ওনার দলের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম করে তার দলের নেতা কোয়ার্টার দখল করে রেখেছেন, তার আশেপাশে যারা ঘোরেন তারা প্রচুর কোয়ার্টার দখল করে রেখেছে ইসকোর। আগে সেগুলোকে সরান, এবং ইসকোর যদি কোয়ার্টার দখল হয়ে থাকে, আমরা ইসকো কর্তৃপক্ষকে বহুবার বলেছি যে আপনারা সেগুলো ব্যবস্থা নিন। ইসকো কেন নিচ্ছে না? ইসকো তো কেন্দ্রের একটা সংস্থা, সেল আইএসপি ইসকো। তো উনি ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়িকা, উনি কথা বলুন। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অফিসটা নিয়ে উনি কেন্দ্রীয় যিনি ইস্পাত মন্ত্রী তার কাছে অভিযোগ করেছিলেন 3-4 মাস আগে লিখিতভাবে, সে তিনি করতেই পারেন। অফিসগুলো নিয়ে তো আমাদের মানুষের পরিষেবা দেওয়া হয়, এবং ইসকো সব জানে। ऐसा लग रहा है मानो शिल्पांचल में जमीन पर किसी भी सरकारी संस्था का कोई आधिपत्य ही नहीं रह गया है। नगर निगम से लेकर एडीडीए और रेल से लेकर सेल की जमीन और क्वार्टर्स अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखे जा रहे हैं, लेकिन बेचारी जनता जिसके पास सर छुपाने के लिए छत भी नसीब नहीं होता, वो राजनीति के दो पाटों में पिस कर रह जाती है। जी सर। आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शुक्रवार को दीदी के दूत बनकर पांडेश्वर पहुंचे। इसके बाद उन्हें अन्य कार्यक्रमों के लिए बांकुड़ा जाना था, लेकिन उससे पहले वे शनिवार को आसनसोल स्थित एडीडीए गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां आसनसोल फ्रूट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि आसनसोल के सभी फल, सब्जी, अंडा, मछली विक्रेता को एक ही बाउंड्री के अंदर लाया जाए। सांसद ने उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए इस दिशा में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन की तरफ से एक मुलाकात करने आए थे हमारे एमपी साहब शत्रुघ्न सिन्हा जी से। हम लोगों ने मिला उनसे। उन्होंने हम लोगों ने कहा कि भाई आसनसोल का जितना भी पेरिशेबल गुड्स है, फल, मछली, सब्जी, आलू, प्याज, अंडा, जो एक बाउंड्री के अंदर आप लोग अगर देंगे तो पूरा शहर सुंदर बनेगा और खूबसूरत बनेगा। पार्ट पार्ट होने से वो गंदगी अलग अलग जगह में होगा और जामों का मसला रह जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बाउंड्री का अंदर हो, ताकि वो सारा समस्या और गंदगी एक बाउंड्री का अंदर हो। और सर ने हम लोगों से वादा किया है कि आप लोग का समस्या को हम हल करेंगे और बहुत जल्द आप लोग को ये खुशखबरी देंगे। হচ্ছে बाउंड्री चाइन पूरा एक बाउंड्री के अंदर सारा जो हो जाए सही है। सफाई के लिए भी अच्छा है, शहर के ब्यूटीफुल खूबसूरती के लिए भी अच्छा है, शहर का हाइजीन के लिए भी अच्छा है। जितने फ्रूट्स हैं, फिश हैं, वहाँ पे जितने पेरिशेबल आइटम्स हैं, जितने आपको अंडा है कि फिश है कि फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, ये लोग अगर एक तरफ एक बाउंड्री के अंदर में आ जाएं तो लोगों के लिए भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, यहाँ के आसनसोल के लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ही होगा। एक अम्ब्रेला के नीचे तो ये लोग चाह रहे हैं, और कहीं कहीं इनको जो उतारने की जगह जो है बहुत छोटी है, तो जो कौन सा हाँ कालीबाड़ी, तो यहाँ पे वो छोटी है, तो उसका भी उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है कि इसका ठीक होना चाहिए। मुझे लगता है सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट में है ये। के लिए सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल के लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा, सोसाइटी और सरकार के लिए भी। तो अगर सरकार से बात करनी पड़ेगी तो मैं अवश्य इसके लिए कोशिश करूँगा, ज़रूर भरपूर सिंसियरिटी के साथ प्रयास करूँगा।
क्योंकि मुझे शुरू में ही कह दिया मैंने, मुझे लग रहा है कि इनके मांगे जो है सही है, उचित मांगे। सर, इससे पहले भी वाम सरकार में हॉकर्स मार्केट का एक प्रोजेक्ट आया था जो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर इस तरह का दोबारा से कुछ किया जाता है तो वो कितना कारगर साबित होगा? देखो, मैं अभी इसको नहीं बोल सकता, आपने जो मुझसे पूछा है उसकी अभी मेरे पास ब्रीफिंग नहीं है। अभी जो लोगों ने ब्रीफ किया मुझे इस विषय पे, उस विषय के आधार पर मैंने आपसे बात की अभी। लेकिन आपने अगर ऐसा कहा, ऐसा कोई मौका या ऐसी कोई बात मेरी नज़रों में लाई जाएगी तो मैं उसके लिए भरपूर चेष्टा करूँगा। जो सोसाइटी के लिए, जो आसनसोल के, जो मेरे सबसे मनपसंद सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल के लिए होगा, बंगाल के लिए होगा, इसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होगा, इसके हेल्थ के लिए होगा, मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। सर, उपचुनाव के दौरान एक बातें काफी चर्चा में थी कि आप आसनसोल में घर देख रहे हैं रहने के लिए, तो इस बात पे अभी क्या चल रहा है सर? देखो, जब लड़की हो तो खामोश भी नहीं बोल सकता ये भी नहीं बोल सकता। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा एक फरमान जारी किया गया। आने वाले 20 जनवरी से टोटो चालक आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक टोटो नहीं चला सकते हैं, ना ही वे जीटी रोड को पार कर सकते हैं। इस फरमान से सहमे आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के टोटो चालकों ने शनिवार को तृणमूल नेताओं के साथ एक बैठक की। टोटो चालकों ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से जो निर्देश जारी किया गया है वह सही है, लेकिन जिन्होंने ये कानून बनाया है उन्हें हमारी मजबूरी भी देखनी पड़ेगी। टोटो चालकों की मांग है कि उन्हें जीटी रोड पार करने दिया जाए, क्योंकि रेल पार से यदि कोई यात्री जिला अस्पताल जाने के लिए बैठेगा और हम बस स्टैंड पर उतरने को कहेंगे तो वो हमारे टोटो में नहीं बैठेंगे। यही हाल रहमतनगर से स्टेशन की ओर जाने वाली सवारियों के साथ भी होगा। इससे उनके रोजी रोजगार पर असर पड़ेगा। कुछ टोटो चालकों का कहना है कि पिछले दिन जो बैठक हुई उसमें पुलिस द्वारा कहा गया कि 90% टोटो अवैध है। जिन टोटो को नंबर मिला है उन्हें चलाने की अनुमति होगी, तो हम लोगों का कहना है कि बिना नंबर का टोटो बेचा जा रहा है, तभी हम लोग खरीद रहे हैं। अगर हम लोगों को कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार है। जिस तरह सिलीगुड़ी में टोटो को आई कार्ड दिया जा रहा है वैसी व्यवस्था यहाँ भी की जाए। उस दिन पुलिस एक तो बात हम लोग को बताया कि आप लोग का गाड़ी जो बेआईनी है, ठीक है, बेआईनी अगर है तो ठीक बात है, हम इसको मानते भी हैं कि बेआईनी है, लेकिन बेआईनी कहीं से तो कहीं से बिक रहा है, वो उस पर भी तो आपको सोचना होगा। अगर वो ना बेचे तो हम लोग ना खरीदें। और उन्होंने कहा एक बात कि जो नंबर जिस टोटो को हो रहा है वो चलेगा या उसको पुलिस डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग का गुजारिश है, खास करके डीएम साहब से हो, मंत्री साहब से हो, जो भी आला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चला रहे हैं आसनसोल को देख रहे हैं, हम लोग तो उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग को पर्सनली पूरा टोटो ड्राइवर का रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी उस कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। हम लोग को भी एक तो नंबर दे दिया जाए। आज से कुछ दिन पहले तो रिक्शा में बैच लगता था, कारपोरेशन एक टैक्स वसूल करते थे, तो हम लोग के लिए कुछ ना कुछ लगा दिया जाए। आज अदर स्टेट में है, सिलीगुड़ी में कल का पेपर में हम लोग को देखा कि कारपोरेशन एक वहाँ आई कार्ड दे रही है, OTP नंबर दे रही है। एक गाड़ी वाला, एक ऑनर का एक ही गाड़ी रहेगा, आप एक एरिया से दूसरे, तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम लोग भी जो भी सिस्टम हो हम लोग को बेहतर के लिए हो, हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम लोग प्रशासन के साथ है, मेयर साहब के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, मलाई घटक के साथ, सबके साथ है। हम लोग उनके खिलाफ कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर कभी बिगड़ जाए। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा शनिवार को आसनसोल में रविंद्र भवन के सामने युवा जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस के राज्य महासचिव बानी कुमार मंडल, आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर, युवा कांग्रेस नेता सौविक मुखर्जी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को आसनसोल के उसाग्रा मोड़ स्थित अनामिका क्लब परिसर में क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी, मानस दास, दीपक रुद्र, पार्षद मौमिता विश्वास, ज्योति कर्मकार, समाज सेवी सह व्यापारी HN मिश्रा, संदीप सामंता ने संयुक्त रूप से किया। इनके अलावा अनामिका क्लब के अध्यक्ष अमित रुद्र, सचिन सपन सिन्हा, किशोर सिंह, सौमेन रुद्र, संदीपन सामंत तथा क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
इस मौके पर क्लब की महिला सदस्य पापिया रुद्रा ने कहा कि अनामिका क्लब पूरे साल सामाजिक कार्य करती रहती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहता है। क्लब के सदस्य सौमेन रुद्र ने कहा कि वैसे तो क्लब के सभी कार्यक्रम में महिला और पुरुष सदस्य एक साथ सहयोग करते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में महिला सदस्यों ने मुख्य रूप से योगदान दिया है। আমরা উষাগ্রাম সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, এটা আমরা উষাগ্রাম অনামিকা সংঘর নামে আমরা ক্লাব আমাদের, সেখানে আমরা প্রত্যেক বছরই একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকি। এটা 4th ইয়ার। আমাদের এই টোটাল প্রোগ্রামটাকে আজকে এখানে যারা পরিচালনা করেছে সেটা আমাদের পাড়ার মহিলারা, যারা আমাদেরই মিসেসরা, বৌদিরা, বোনেরা, তারা সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে। আমাদের যেটা এক্সপেকটেশন ছিল যে আমরা 35+ আমরা ডোনার কালেক্ট করব, তো সেখানে আমরা হয়তো 40 হয়ে যেত, কয়েকজন বিভিন্ন কারণে তাদের রক্ত নেওয়া হয়নি, তো 38-এ আমরা ক্লোজ করতে পেরেছি। সৌমেন রুদ্র। आसनसोल नगर निगम के 40 नंबर वार्ड अंतर्गत आरा डंगाल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की तरफ से पहला रक्तदान, नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन 40 नंबर वार्ड की पार्षद मोमिता विश्वास ने किया। मौके पर आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर, क्लब के प्रेसिडेंट अरुण चक्रवर्ती, सचिव कल्याण दे, वाइस प्रेसिडेंट सुब्रत चैटर्जी, गौतम बैनर्जी, सुकांत बोस, तपन सरकार, संजय सरकार सहित क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस शिविर में 24 यूनिट रक्त संग्रह किया गया और 60 लोगों ने नेत्र जांच तथा स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। হিসাবে পালন করছি। এতে আমরা মোটামুটি মূলত 4টে জিনিসের ওপর আমরা জোর দিয়েছি। এক হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, যেখানে প্রায় 30 জন রক্তদাতা রক্ত ডোনেট করেছে। আমাদের সাথে সাথে চলছে ক্যাটারাক্ট, আই ক্যাটারাক্ট ডিটেকশন। লায়ন্স আই হসপিটালের সহযোগিতায় আমরা এই অনুষ্ঠানটা আমরা চালাচ্ছি। আগামী 27 তারিখ তারা ডেট দিয়েছে। আজকে 40 জনের মতো লোক এসে চক্ষু পরীক্ষা করেছে, তার মধ্যে 7 জনকেও ওনারা সিলেক্ট করেছেন। আগামী 27 তারিখ ওনাদের চোখ অপারেশন হবে। সাথে সাথে আমরা জেনারেল হেলথেরও আমরা একটা শিবির করেছি। জেনারেল হেলথে বিভিন্ন ডাক্তাররা এসছেন, যেখানে জেনারেল ফিজিশিয়ান আছেন, ডেন্টাল আছেন, ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন। এনারা মোট 62 জনকে এখন পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। তাছাড়া আমরা একটা বড় প্রস্তুতি নিয়েছি, সেটা হচ্ছে মরণোত্তর চক্ষুদান। মৃত্যুর পরে চক্ষুদান ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুবই সজাগ। সেই জন্য আমরা এখানে অঙ্গীকারপত্র পূরণ করছি। এখন পর্যন্ত 22 জন লোক আমাদের এখানে অঙ্গীকার করে গেছেন। আমার নাম কল্যাণ দে তরফদার, আমি এই ক্লাবের সেক্রেটারি, সম্পাদক।